Now we have breaking news that's coming in from Jhansi, where forensic teams have left the spot of the tragedy for further investigation in the aftermath of the devastating fire at Jhansi Hospital, which claimed the lives of 10 newborn babies. Authorities have identified 7 of the victims, a total of 39 children who were in the hospital in NICU ward at the time of the fire are still receiving treatment. What we do know is that 17 of them have suffered severe burn injuries. There you see on your screen, there are visuals from the spot. The fire that started at 10:45 p.m. last evening turned into a massive tragedy, after which 10 infants have died. Many of them are undergoing treatment at the hospital after they have served severe burn injuries. Akhil, my colleague, is joining me live from Jhansi. Akhil, what is the update in the case so far? Has any culprit been nabbed? What is the update on the investigation that is being carried out in the case? Well, as per the order given by the UP Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath, a probe panel has been formed which will inquire the entire investigation in the case. And member of that panel is Commissioner of Jhansi, and apart from that, DIG of Jhansi as well. Right now, I'm just standing at a mortuary center here. You can see at this point in time, basically a post-mortem of those deceased is being done at this mortuary center. So we have just spoken to the few officials of medical officials over here, and they are saying that out of 10 bodies, 7 bodies post-mortem have already been done. So three bodies post-mortem is still left. For that, it will take another 1.5 hours. So for that, we'll have to wait and watch. And apart from that, I would like to move a little bit forward and show you the visual. So these are the parents, victims' parents, who are eagerly waiting to take the bodies of their kin. And apart from that, if you see on the part of investigation, few hours back, the forensic team have arrived over here, and they have recovered basically the key crucial evidence from the various spot, and then they left. So right now the investigation is on, but no FIR has been registered in connection with the case. And the second important thing is, which we would like to highlight, is that if you talk about the lapses on the part of the district administration, there are many. Because if you see the fire extinguishers which were being used at the district administration hospital was expired, because if you see the manufacture date of those fire extinguishers was in 2019, and then its breath period is of approximately 1 year, and it got expired in 2020, but still they were in use. So on that part, the district administration must need to answer those questions, that why those expired fire extinguishers were used in the hospital. So these are the concerns which were being raised by the victims' family members as well. So apart from that, if you see 17 infants are still undergoing treatment who have got burn injury in 2 different hospitals, apart from this very spot where we are standing at Lakshmi Bai Hospital. So they were shifted to 2 other hospitals as well. Yes, back to you. Right, Akhil, thank you for sharing us all those updates. The key question remains who's to be held accountable after 10 infants have lost their lives, because remember, what we're talking about here goes beyond politics. It was about negligence and laxity on the part of the authorities, after which 10 newborn babies have lost their lives. We have several reactions coming in from the eyewitness, from the families of the victim, and also from what authorities have to say. Listen in. नहीं, क्राइम सीन को रिविजिट करना होता है, इम्पोर्टेंट प्रकरण है, तो इसलिए हम लोग बार-बार क्राइम सीन को रिविजिट करते हैं. उसी कारण जो है क्राइम सीन को रिविजिट किया गया है. मैम, परिजन अभी भी यहाँ पर बाहर बहुत सारे मौजूद हैं, परेशान हैं. वो ये कह रहे हैं कि उनको उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई जानकारी विशेष उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है. नहीं, इसमें मेडिकल बुलेटिन भी जारी हो चुका है. सबके नाम और जो बच्चों के नाम और पते हैं वो भी उनको बताए जा चुके हैं. यदि फिर भी उनको कोई समस्या है तो वो बिल्कुल संपर्क करें. हम लोग यहीं पे हैं, कल से यहीं पर हैं, और उनकी समस्या का डिस्पोजल किया जाएगा. जो रिपोर्ट सौंपनी थी शासन को, उसको लेकर कितना वक्त और लगेगा? वो इसमें कमिश्नर साहब बेहतर बता सकते हैं, पर वो प्रिपेयर कर रहे हैं रिपोर्ट, और शीघ्र ही सौंपी. मेरा आखिरी सवाल ये है, कितने बच्चे इंजर्ड हैं, कितने बच्चे की स्थिति क्रिटिकल है, कितने बच्चे
जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और कितने अभी यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में? नहीं, 10 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और अभी जो बाकी बच्चे हैं वो घायल हैं और जो हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में इस समय एडमिट हैं। बहुत से लोग मेडिकल कॉलेज में, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, और उसके बाद करीब 4 बच्चे वात्सल्य में, 3 बच्चे मातृत्व में। इस प्रकार से बच्चे एडमिट हैं। सभी की वेरिफिकेशन हो चुकी है और कुछ बच्चों की अभी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, उनकी वेरिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। कौन देगा मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो वही देगा जवाब देंगे। मेरा बच्चा चला, मेरा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? शनिवार दिन था, 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ था हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना भाई, चल गए भाई उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 बच्चों की मौत हो चुकी। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी हॉस्पिटल में, आपको बता दें मेडिकल कॉलेज में ही, जहां पर बच्चों की मौत हुई है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने रात में कई बच्चों की जान भी बचाई और आप अपने बच्चे के बारे में आज भी पता कर रहे हैं, अभी भी पता कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग पा रहा है। मैम, क्या स्थिति है? पता नहीं चल रहा सर, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा कोई। लेकिन आप रात में यहाँ पर थे, आपने कई बच्चों की जान भी तो बचाया, कई बच्चे बचा। देख लो सर, मेरे तो हाथ जले हुए है, मेरे तो बस जल गया हुआ और आंखों में तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। तब भी मैंने दूसरों के बच्चे बचाए। मंजर था रात में, आपने कैसे बच्चों को बचाया? दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों पे दिखाई नहीं था, सगले हर जगह आग लगी थी, धुआं छा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों से भाग रहे थे हम लोग। यहाँ पर जो फायर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो हम देख रहे हैं जिस तरह से वो 2022 में एक्सपायर्ड हैं। वो मिल ही नहीं रहे थे सर, वो तो मिल ही नहीं रहे थे। कोई इधर ढूंढ रहा था, वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, बस लिए घूम रहे थे, ऐसे कर रहे थे। आपने कैसे जान बचाई थी बच्चों की? बच्चों को सर मैं तो अंदर ही घुसा, अंदर बच्चे थे, लेके आए बाहर लेके जैसे गया, किसी ने जिसका बच्चा पाया वही उठा के लेके चला गया। अब उन लोगों ने भी ये भी सोचा कि हमारा बच्चा होगा, अब उनको भी पता नहीं हमारा है कि किसी और का, जिसने पाया वही लेके चला गया। सर तकरीबन कितने बच्चे थे? कम से कम 50 प्लस बच्चे होंगे सर। आपका बच्चा अब तक मिल पाया? मेरा बच्चा सर नहीं मिला, क्या उम्मीद लगाओ किसी से बच्चा मेरा मिलेगा या नहीं। कहाँ से हैं आपने यहाँ पर क्यों एडमिट कराया? मैं कबरई से हूँ, महोबा जिला का रहने वाला हूँ। इधर अपना मंगलवार को रात में बच्चे लेके आया था। वैसा क्या उम्मीद रखूँ बताओ, मैं खुद जलाओ। देखो डॉक्टर को विश्वास नहीं होता कि कैसे, मेरे तो सुबह हो गई। आपने डॉक्टर से पूछा? किसी ने कुछ नहीं बताया। तो क्या माना जाए, कितने बच्चे अब तक मिसिंग हैं ऐसे? मैसेज तो अभी सर, बच्चे तो अभी काफ़ी ठीक है, जिंदा है काफ़ी, तो अभी पता नहीं कोई किसी हॉस्पिटल कोई कौन। मिसिंग कितने हैं, कितने बच्चे ऐसे जिनके बारे में पता नहीं लग पा रहा है? जैसे आपका भी बच्चा एक है। मेरा बच्चा काफ़ी लोग है सर, बच्चे जो नहीं मिल पा रहा है अभी। तो आप लोगों ने क्या हॉस्पिटल से बात करी अभी किसी से? जी हॉस्पिटल से अभी किसी ने कुछ नहीं बताया सर, किसी ने कुछ नहीं बताया अभी। तो वही हम खुद ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे पे, किसी ने कुछ नहीं बताया सर। क्या स्थिति थी रात में? फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई और कैसे आग पर काबू पाया गया? सर लेट आई थी, रात पे काफ़ी लेट आई थी, फिर अभी तक कोई कुछ मिला ही नहीं है। बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं मिली।